If you are focusing on studies, if you are making money in your early 20s, or even if you are studying for being a doctor, being an engineer, bro, you have to focus on dating also. You have to be good with women, because you know what will happen if you don't focus on dating. If you just study, bro, I will build a garden, butterfly will follow. Yes, they will follow, but they are not pure butterflies. And even if the butterflies will come, they will only come because of your money and not because of your personality. Bro, I will tell you one rule, well, one simple rule. You should be able to attract women when you are broke, when you should be able to attract women when you don't have any success in life. Only by your personality you should able to attract women. That's the key aspect of being a man. Like, if you just get women by like showing your money, showing your status, that's a leverage. But if you're only getting women because of money and status, she is not really into you, she is just into your money and into your status. She wants something from you which is not your, which is not you yourself, but the things like money and status. So I'll give you my example. Currently I am 17-year-old. I have started dating in a polygamous way in like from like last 2 months. एंड पॉलीगैमस का मतलब ये है कि मैं एक बार में एक लड़की के साथ कमिटेड नहीं होता हूँ, बट दे आर स्टिल कमिटेड टू मी. सो करंटली आई हैव three girlfriends are committed to me, but I'm not committed to them. And I'm not cheating on them. They know about each other. They also know that I talk to other women. They know about that. Now you will say, "Oh, bro, but what? You are cheating on them." I'm not cheating on them. They know about each other. They know about that I talk to other women also. But bro, तुझे क्या पता अगर उन्होंने ऐसा करा तो? They won't. I don't spend a penny on any of my girlfriend. Like मैं 1 रुपए खर्च नहीं करता, 1 रुपए. मुझे मेरी गर्लफ्रेंड्स घर में लेने आती है गाड़ी से. सो मैं उन पे 1 रुपए खर्च नहीं करता, एंड दे आर स्टिल विथ मी बिकॉज दे आर विथ मी. मैं भले ही पैसे कमाता हूँ, बट इट्स नॉट कि मैं उन पे फिर पैसे बहुत खर्च करता हूँ. उन्हें मैंने ऐसे गुच्ची की बैग दे दी या फिर बैलेंसिया का कुछ तो ये दे दिया, लिपस्टिक मेकअप किट ना. आई जस्ट गिव देम माई टाइम, आई जस्ट गिव देम माई अटेंशन, एंड दे आर लाइक भाई व्हाट द हेल भाई. एंड I know that you don't trust me on this yet. But bro, there are levels to this shit, bhai. There are levels to this shit. 1 साल पहले अगर मैंने ये किसी सुना होता, आई वोंट बिलीव इट, बिकॉज मैंने वो खुद कभी जिया नहीं है ना. एंड ब्रो, जब मैं अभी ये जीता हूँ, मुझे लगता है कि वो व्हाट द फक, लाइक एम आई ड्रीमिंग और व्हाट. आई नो इट्स controversial as fuck, but bro, I am not cheating on any of my girlfriend. They know about each other. They know I talk to other women. They know about it. They are still with me because they are in love with me. They love my personality. They love the way I talk. They love the way I do everything. You getting my point, bro? That's the ideal scenario you must have in your dating life. And हाँ, अगर आपके पास ये सब है, and now you earn money, and now you have status, and now you have social media following, and now you know like how to talk to other women, now that's a leverage. Now you are tall, now you are handsome, now you are jacked. That's a leverage. That's a leverage. लेकिन अगर आप फर्स्ट प्लेस, हाँ, being jacked and being tall is a good thing. मैं tall नहीं हूँ, I'm 5'6" by the way, and I'm not tall, but I'm jacked. Like not jacked, but like I have some sort of muscle, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ट्रेन कर रहा हूँ. मैंने 1.5 साल तक बल्क करा है, पिछले 1 साल से मैं कट कर रहा हूँ, तो मैंने टोटल में 2.5 साल की ट्रेनिंग में हूँ मैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. You don't need money to get women. I'm telling you भाई. And even if you don't trust me on this right now, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, इवन जब गर्लफ्रेंड बन जाएगी एमबीबीएस के बाद या फिर एमबीबीएस में, यू विल नो, यू विल नो कि मैं क्या बोल रहा था. इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हारा जब पैकेज लग जाएगा अच्छा खासा, 25-30 लाख का पर ईयर का, तब तुम बोलोगे हाँ भाई अब तो बंदी मिलेगी, हाँ मिलेगी. बट शी वोंट बी इनटू यू बिकॉज ऑफ यू योरसेल्फ, बट बिकॉज ऑफ द मनी यू अर्न. एंड इवन इफ योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ इज
like independent woman, she earns, but still वो शायरी तुम्हें देख के नहीं करेगी कि तुम कैसे बंदे हो. She will look at your family. Even if she's a good woman, she will look at you, but her family will look at the things you own. And that's a basic thing. Of course, you should earn money and you should have property and everything. But in the first place, in dating, the girl must love you for you yourself and not for the things you provide to her, which is money and status and everything. वो सारी चीजें you should provide. Like, it's secondary, but in the first place the girl should be attracted to you yourself, not because कि तुम बहुत पैसे कमाते हो, not because कि तुम किसी पॉलिटिशियन के लड़के हो, not because कि तुम क्या उसे बोलते हैं, हम्म, तुम बस एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. अगर तुम कल अपनी बंदी को अप्रोच करोगे, लाइक जो तुम्हारे जो, ऐसा भी नहीं, अगर कल तुम किसी लड़की के पास गए विदाउट से टेलिंग हर कि तुम इतना पैसे कमाते, ऐसे हाँ, विदाउट टेलिंग हर कि तुम इतना पैसा कमाते हो, विदाउट टेलिंग हर कि तुम इतना, तुम्हारा स्टेटस है बड़ा अच्छा, तुम्हारे पापा ये करते हैं, तुम ये करते हो, वो करते हो, जस्ट बाय टॉकिंग टू हर, जस्ट बाय विथ योर लुक्स, जस्ट विथ योर फिजिक, क्या तुम उस लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो? इफ द आंसर इज यस, go ahead. You don't need this video, but I'm talking to the most of the people who are like deliberately, नहीं क्या उसे शब्द, what the fuck, मैं 12th के बाद स्कूल छोड़ दी थी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे शब्द पता नहीं, बट वो अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ाई पढ़ाई में लगाने वाले हैं. लाइक MBBS करूंगा भाई, इंजीनियर बनूंगा भाई, भाई मैं तो फिर एक काम करूंगा, फिर बटरफ्लाई विल फॉलो मी. ब्रो, if you can't attract a woman just with your talking skills and with your looks and with your physique, every girl which will come to you because of your money and your status. And you don't want that kind of woman. You want a woman who loves you for you, your own personality, and फिर तुम्हारे पास पैसे है, फिर तुम्हारे पास looks है, फिर तुम्हारे पास height है, that's a good thing. फिर तुम्हारे पास status है, फिर तुम्हारे पास social media following है, that's now you are talking as a 1% man shit. लेकिन that's what I'm saying you भाई, you should focus on dating, bro. Like, get experience with women. I'm not saying sacrifice your studies, but 80-20% रूल फॉलो करो ना. लाइक 80% स्टडी करो, 20% लड़कियों पे ध्यान दो, एंड ध्यान दो, लाइक आई एम टेलिंग यू. वरना जो मैंने बोला, आप भले ही शादी कर लोगे, लेकिन योर वुमेन विल चीट ऑन यू with the kind of man who knows how to talk to women, who can get a woman by like just by his talking skills, just by his physique, and you will get cheated on, bro. जो तुमने अभी, अगर तुम इंडिया से हो, you know the cases in India की लाइक बीवी अपने मर्द को मार देती है बिकॉज ऑफ लवर, एंड वो लवर इज नॉट रिच, ही इज नॉट हैंडसम, he just know how to she just know female nature, and he gets the woman. एंड वो बंदा जो अमीर होता है, जो बस पैसों पैसों पे फोकस करता है, पैसे कमाता है, बड़े बाप की औलाद है, ही, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसे खाई से ढकल दिया होता है कुछ तो, डोंगर सेवा कुछ तो, वो कुछ मैं केस सुना था मैंने लाइक बीच में एक बार. दैट वुड बी यू, एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट पर्सन. अगर तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं, बी द गाय हु गेट्स चीटेड ऑन बट ही इज लाइक रिच, और बी द गाय हु द गर्ल्स चीट्स with on the other guy. Be the guy who the woman cheats with, not the guy who the woman cheats on. Bro, I'm telling you, मैंने like literally ऐसी भी लड़कियों के साथ बात करी है, बातें थोड़ी आगे तक ले गई है, जिन लड़कियों का बॉयफ्रेंड था. Seriously, I'm telling you भाई, and I know you won't believe me right now, but भाई कैसे तुम्हें मैं भरोसा दिलाऊं ना इन चीजों का. बट भाई स्टिल, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी राइट नाउ, द लाइफ विल गिव यू दिस लेसन इन इट्स ओन वे. तुम्हारा बड़ा गंदा कटेगा, तुम नशे में पड़ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई. आई एम टेलिंग यू. या फिर तुम चुप भी हो सकते हो. इफ द गर्ल इज सो ऑब्सेस्ड विद हर लवर,
आई एम टेलिंग यू भाई, फोकस ऑन वुमेन। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ छोड़ के वुमेन पे फोकस करो ना। You should know how to talk to women. You should know how to be comfortable around women. You should be someone that women feel comfortable around. And that's it. That was my point. अगर तुम अभी भी बोलते हो मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल अट्रैक्ट बटरफ्लाइज ब्रो, मैं गार्डन बनाऊंगा, यस ब्रो, गो अहेड, गो अहेड। अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है, देन गो अहेड। द लाइफ विल टीच यू इट्स लेसन इन इट्स ओन वे। एंड भाई, आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू भाई, आई एम वार्निंग यू, just listen to me भाई। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, जस्ट गो एंड वॉच आउट माई व्लॉग्स। मैं हर उस जर्नी डॉक्यूमेंट करता हूँ, मैं डेट्स पे जाता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। आई जस्ट डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी इनफ येट, जस्ट गो एंड वॉच आउट माई व्लॉग्स, यू विल ट्रस्ट मी। आई मेक व्लॉग्स एवरी सिंगल डे, आई डॉक्यूमेंट माई जर्नी एवरी सिंगल डे। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि focus on a purpose, yes, but also focus on women. Because if you don't, the woman will focus on the guy who also focuses not on focus on completely on women, but who knows how to talk to women, who knows the feminine nature, who knows the woman ka nature. Yeah, woman will focus on him. सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से पर्सनली बात करने में, अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे डीएम करो। हम पहले एक 10 मिनट का फ़ोन कॉल करेंगे, एंड उसके बाद वो द फ़ोन कॉल विल बी एब्सोल्युटली फ्री। यू विल गेट कोचिंग फ्रॉम मी विच विल बी पेड ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें आई विल हेल्प यू इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट यू कैन एवर इमेजिन, लाइक योर मेंटल हेल्थ, योर फिटनेस, योर डेटिंग। एंड बस इन तीन तीन चीज़ों में बहुत से सब पॉइंट आते हैं। लाइक डेटिंग में तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब पॉइंट आते हैं, फिटनेस में भी बहुत सब पॉइंट्स है, एंड मेंटल हेल्थ में भी बहुत सब पॉइंट्स है। इफ यू थिंक कि भाई कि मैं क्रेडिबल हूँ या नहीं, लाइक मैं क्रेडिबल हूँ या नहीं, जस्ट गो एंड वॉच आउट माई व्लॉग्स, आई डॉक्यूमेंट माई जर्नी एवरी सिंगल डे। बाय द वे, इट्स करंटली 3:30 राइट नाउ इन द मॉर्निंग। मैं आज 1 बजे उठा हूँ, मैं हर रोज 1 बजे उठता हूँ, एंड आई रिकॉर्ड वीडियोज फ्रॉम 1 to like 4 o'clock और समथिंग। ये मेरा आज का 7th वीडियो है बाय द वे। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।